Hello students, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. Kids, as you all know, my subject is science. Kids, we completed 3 sessions of chapter number 4, the nervous system. Right? Today is session number 4. In today's session, I am going to explain you about sense organs. Eyes, ears, nose, tongue and skin. These are all our sense organs, right? But before I start explaining about sense organs, I just want you to help you to revise all the things what we have already done in our earlier sessions. So let's begin that. What we have done in our earlier sessions? The nervous system, the brain, nose, the spinal cord and reflex action, right? So फटाफट से सबसे पहले फटाफट से vocabulary words को read कर लेते हैं, right? So you can improve your pronunciation, okay? Nervous, cerebrum, cerebellum, brainstem, nerves, sensory, reflex, nasal, mucus, nostrils, nasal, cavity, retina, pupil and iris. Now I am reading all the meanings, okay? So listen carefully, kids. Number 1, motor. Relating to muscular movement or the nerves activating it. Number 2, sensory. Connected with your physical senses. Number 3, reflex, an action or a movement of your body that happens naturally in response to something that you cannot control. Number 4, mucus, a sticky substance that is produced in some parts of the body, especially the nose. Number 5, nostril, the 2 openings at the end of your nose that you breathe through. Okay kids, now the nervous system. The nervous system controls all the organs of the body. Nervous system हमारे सारे के सारे body के organs को control करता है. The brain, nerves and the spinal cord from the nervous system. Now the brain. The brain is located inside the skull. It controls our body movements. Brain है हमारे body movements को control करता है. It also helps store information. हमारे body में मतलब कि हम information को store करना किसका काम है? Brain का, right? मैंने earlier sessions में बोला था, हम कुछ भी चीज़ करते हैं, करने वाले होते हैं, ऐसा कुछ भी हो तो ये सब कुछ चीज़ें कौन स्टोर करता है? ब्रेन करता है, राइट? The human brain has 3 main parts: cerebrum, cerebellum and brainstem. Number 1, cerebrum. It is the largest part of the brain. It mainly controls the functions of our sense organs. Cerebellum. It is situated below the cerebrum. It mainly controls the working of the muscles. Brainstem. It lies beneath the cerebellum. It connects the brain to the spinal cord. It controls the heartbeat and breathing, right? Now nerves. A nerve carries messages between the brain, the spinal cord and other parts of the body. Nerves are of 3 main types: motor nerves, sensory nerves and mixed nerves, right? Now spinal cord. The spinal cord is a thick bundle of nerves which extends down from the brainstem. It is surrounded and protected by the backbone. It carries messages from the brain to the rest of the body. Now reflex action. The reflex action is one of the ways by which the body protects itself from harm.
These action takes place very fast and done without any immediate instructions from the brain. For example, when our hand comes in contact with something very hot or sharp, we pull it away instantly and automatically even before the brain realizes the danger. Reflex action में हम कुछ भी गर्म चीज़ को टच कर लेते हैं या तो फिर कोई भी शार्प चीज़ को टच कर लेते हैं तो इमीडिएटली हमारा ब्रेन हमें क्या कमांड करता है, ब्रेन कमांड दे उससे पहले तो हम अपने हाथ हटा लेते हैं, राइट, बिकॉज ये रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। अचानक से हमारे आईज में कुछ भी रिफ्लेक्शन आ रही है, अच्छी वाली लाइट आ रही है तो हम ब्लिंक करते हैं ना, तो ब्रेन को पता चले उससे पहले तो हम लोगों ने ब्लिंक कर लिया होता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। This automatic response of the body to a change in the surroundings is called a reflex action. It is controlled by the spinal cord. Other examples of reflex actions are blinking of eyes, sneezing and salivating. Blinking of eyes, sneezing, छींक खाइए ना अपने ये अचानक कर जावे, ब्रेन को कमांड मिले उससे पहले तो हम ये कर देते हैं, बराबर। So kids, here we completed our revision of all the earlier sessions, right? Now let's begin our today's session about sense organs. Eyes, ears, nose, tongue and skin are our 5 sense organs. How many sense organs we have? We have 5 sense organs. Which are they? Eyes, ears, nose, tongue, skin. Repeat kids. Eyes, ears, nose, tongue and skin. One more time. Eyes, ears, nose, tongue and skin. Kids, ये पांचों के पांचों सेंस ऑर्गन्स को हम आज डेप्थ में पढ़ेंगे, ओके। आईज, फर्स्ट ऑफ ऑल आईज। We see things around us through our eyes. हम आजू बाजू में कोई भी चीज़ देखते हैं तो हम किसकी हेल्प से देखते हैं? आईज की मदद से, राइट। अभी आप मुझे देख रहे हो वीडियो में किड्स, तो आप अपनी आईज से देख रहे हो ना मुझे, कि ईयर से देख रहे हो, आईज से देख रहे हो, राइट। तो व्हाट वी सी थिंग्स अराउंड अस थ्रू आवर आईज. Eyes are spherical in shape and fit into the sockets of the skull. हमारे स्कल के अंदर सॉकेट्स होते हैं, आईज उसके साथ अटैच होती है। आईज का शेप कैसा होता है? स्फीयरिकल। कैसा होता है? स्फीयरिकल। हमारी आईज है ना जो, उस शेप को हम क्या बोलेंगे? स्फीयरिकल शेप। और वो कहाँ पे अटैच होते हैं? वो हमारे स्कल के अंदर सॉकेट होती है ना, उसके अंदर जॉइंट होते हैं, राइट। Eyelids and eyelashes protect the eyes from dust and other harmful particles. Now kids, what is eyelashes and what is eyelids? पता है आपको? Kids, ये जो हमारी पापड़ होती है ना, पापड़, उसको हम क्या बोलेंगे? आई लैशेस। क्या बोलेंगे किड्स उसको हम? आई लैशेस। और ये जो हम आईज जिससे क्लोज करते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे? आई लीड। क्या बोलेंगे? आई लीड आई लैशेस, आई लीड आई लैशेस, आई लीड एंड आई लैशेस। क्लियर द डिफरेंस बिटवीन आई लीड एंड आई लैशेस? लीड मतलब ये वाली लेयर जो हम आईज को क्लोज करते हैं, और आई लैशेस मतलब ये वाला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? आई लैशेस। तो ये दोनों का काम क्या है? आई को प्रोटेक्ट करना। व्हाट इज द वर्क ऑफ आई लैशेस एंड आई लीड? टू प्रोटेक्ट द आई। आई को प्रोटेक्ट करना ये उसका वर्क होता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द आई। आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आज हम डेप्थ में पढ़ेंगे किड्स। पॉइंट नंबर 1, a thin transparent layer covers the front part of the eye. It is called the cornea. Kids,
Here I am sharing an image of the structure of the eye. Okay? उसमें पहला वाला है, a thin transparent layer covers the front part of the eye. हमारे आई में एक सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है ना, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट लेयर होता है. कैसा लेयर होता है? ट्रांसपेरेंट लेयर होता है. इट कवर्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द, इट इज कॉल्ड द कॉर्निया. वो जो हमारी आई का फर्स्ट वाला पार्ट होता है ट्रांसपेरेंट वाला, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? कॉर्निया. क्या बोलेंगे? कॉर्निया. CORNEA, कॉर्निया. आपको दिख रहा है ना? अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप अपनी ही आईज को देख लो मिरर में जाके, या तो फिर आपके आजू बाजू में आपके कजिन, सिबलिंग्स, मॉम, डैड, ग्रैंड पेरेंट्स है, तो उसकी आईज में भी देख सकते हो आप लोग. उसका फर्स्ट पार्ट है, उसको टच नहीं करना है, उसको हार्म नहीं करना है, सिर्फ देखना है. ओके? तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्निया. ओके? नाउ पॉइंट नंबर 2. The round colored part of the eye located behind the cornea is called the iris. Transparent layer के एकदम से पीछे राउंड कलर्ड पार्ट है. क्या है? राउंड कलर्ड पार्ट है. होते हैं ना हमारे राउंड कलर्ड पार्ट, ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है ना, वो एकदम कॉर्निया के पीछे होता है. एकदम से कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेयर के पीछे कौन सा लेयर होता है? कलर्ड लेयर होता है. बराबर? तो उसको हम क्या बोलेंगे? इरिस. IRIS, इरिस. आपको इस इमेज में क्लियर है? इरिस आपको दिख रहा है ना? यहाँ पे एरो करके भी दिखा है, और आप अपनी आईज में भी देख लो, कलर्ड पोर्शन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे किड्स? इरिस. नाउ पॉइंट नंबर 3. At the center of the iris is an opening called the pupil. Iris जो होता है ना, उसके अंदर छोटा सा होता है, उसको हम क्या, वो एक छोटा सा ओपनिंग होता है. क्या होता है? एक छोटा सा ओपनिंग होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्यूपिल. PUPIL. उसको हम क्या बोलेंगे? प्यूपिल. आपको बीच वाले सर्कल में बीच में एरो करके दिखाई दे रहा है, राइट? इवन हमारी आईज में आप इजीली देख सकते हो प्यूपिल को. ओके? लाइट एंटर्स द आई थ्रू द प्यूपिल. हम जो सब कुछ देख सकते हैं, राइट? तो जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट, तो लाइट वहां से एंटर होती है, लाइट प्यूपिल में से एंटर होती है. ओके? नाउ पॉइंट नंबर 4. A lens located just behind the pupil helps to focus the light. Pupil के पीछे, एकदम से पीछे की तरफ एरो किया है, राइट? वो क्या है? वो लेंस है. क्या है वो? लेंस है. लेंस का क्या काम है? तो कि वो लाइट जो हमारे अंदर आती है ना, उसका फोकस बढ़ाता है. क्या बढ़ाता है? फोकस करवाता है. फोकस करवाता है किड्स, उसी वजह से हमें फोकस आता है. अदरवाइज हम फोकस नहीं कर पाते, हम देखते यहाँ पे, लिखते यहाँ पे, ऐसा सब कुछ हो जाता है, राइट? तो फोकस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो द लेंस लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल्स हेल्प टू फोकस द लाइट. लाइट के ऊपर फोकस करने में हमारी हेल्प करता है. अगर लाइट के ऊपर हम फोकस कर लेते हैं तो कोई भी वर्क हमारे लिए ईजी हो जाता है. क्लियर किड्स? Now point number 5. Light passing through the lens falls on a lining called the retina, which is sensitive to light. आपको किड्स वो रेड कलर की आउटर सरफेस में पार्ट दिख रहा है, उसको हम रेटिना बोलेंगे. क्या बोलेंगे? रेटिना बोलेंगे. वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है. अगर जो उसके अंदर लाइट हो जाती है तो हमें सेंसिटिविटी फील होती है. कभी कभी आपकी आईज में अचानक से बहुत हैवी वाली लाइट आ जाती है तो आप थोड़ा सा फील करते हो, सेंसिटिविटी फील करते हो, राइट? बिकॉज वो डायरेक्टली कहाँ पे पहुँचता है? रेटिना में पहुँचता है. रेटिना में पहुंचने की वजह से वहाँ पे सेंसिटिविटी हमें फील होती है. जैसे हम टीथ में खाते हैं कुछ भी, तो ठंडा या गर्म लेते तो हमें सेंसिटिविटी फील होती है कि नहीं होती है किड्स? यस, डेफिनेटली होती है. बिल्कुल उसी हिसाब से
हमारे आईज में भी रेटिना का पोर्शन है वो बहुत ही सेंसिटिव वाला है, तो उसके अंदर अगर लाइट जाएगी तो डेफिनेटली सेंसिटिविटी होगी। क्लियर? नाउ लास्ट पॉइंट, द रेटिना सेंड्स मैसेजेस टू द ऑप्टिक नर्व विच कैरीज द मैसेज टू द ब्रेन। वहाँ पे लास्ट में ऐसा थोड़ा सा दिख रहा है, व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है, आइज जो देखती है वो डेफिनेटली आइज को एक मैसेज पहुंचाना है। किसको मैसेज पहुंचाना है? ब्रेन को। तो ब्रेन को मैसेज पहुंचाने का काम किसका है? ऑप्टिक नर्व, OPTICNERVE, ऑप्टिक नर्व। क्लियर किड्स? उसका काम होता है आइज ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना। अगर कोई भी चीज़ को हमें करनी है, हमें चलना है, मूवमेंट करनी है, ईचिंग हो रही है, ये सारी की सारी चीज़ें, सामने से कोई भी व्हीकल आ रहा है तो हमारी आइज़ ने उसको कैच किया, तो आइज़ ने फटाफट से ऑप्टिक नर्व के थ्रू मैसेज पहुंचा दिया कि ब्रेन को कि हमें यहाँ से इंस्टेंटली 2 सेकेंड्स में यहाँ से हट जाना है, अदरवाइज हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्टिक नर्व का काम है ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना। क्लियर किड्स? आई होप सो यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द आई। ओके किड्स, नाउ द नोज। The nose helps us to smell and breathe. नोज का क्या काम होता है? नोज का काम होता है स्मेल करना और ब्रीद करना। क्लियर किड्स? वो तो हम सबको पता है ना, कहीं पे भी स्मेल आ रही है, मम्मा ने ऐसा बोलते हो ना, मम्मा आज आपने भिंडी बनाई है, आज आपने यहाँ पे रोज की स्मेल आ रही है, तो ये कौन काम करता है? नोज करता है, राइट? हम ये जो ब्रीदिंग ले रहे हैं उसको भी कौन काम करता है? नोज ही करता है, राइट? नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द नोज, ये हमारे नोज का स्ट्रक्चर हम डेप्थ में पढ़ेंगे। ओके, उसमें पॉइंट नंबर 1, ईच नोज हैज अ पेयर ऑफ ओपनिंग्स कॉल्ड द नोस्ट्रिल्स। ये जो हमारा नोज होता है ना, यहाँ पे 2 ओपनिंग्स होते हैं जिससे हम ब्रीद करते हैं, स्मेल भी करते हैं, राइट? हम उसको क्या बोलेंगे? नोस्ट्रिल्स। व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ नोस्ट्रिल्स। क्या बोलेंगे ये 2 ओपनिंग्स को? नोस्ट्रिल्स। NOSTRILS, nostrils. Point number 2. These are lined with the fine hair and mucus that help to trap dust and dirt from the air that we take in. Kids, मैंने आपको मीनिंग्स में एक्सप्लेन किया था व्हाट इज म्यूकस, राइट? अभी ये 2 ओपनिंग्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास नोज में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। वो क्या करता है? हमारे नोज में डस्ट, पॉल्यूशन या तो कुछ भी, कोई भी कचरा हो उसको अंदर जाने से रोकता है। क्या करता है? अंदर जाने से रोकता है। अंदर जाने से रोकता है, तो ये जो डस्ट, डर्ट, ये सब कुछ होता है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? म्यूकस में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? म्यूकस, जो हमारे अंदर गंदा वाला होता है, जो स्टिकी होता है। कैसा होता है? स्टिकी होता है, राइट? तो उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूकस। क्लियर किड्स? नाउ पॉइंट नंबर 3, ईच नोस्ट्रिल लीड्स इनटू अ cavity called the nasal cavity. हर ईच नोस्ट्रिल, यहाँ पे एक एक नोस्ट्रिल होता है, लीड्स इनटू अ कैविटी कॉल्ड द नसल कैविटी। अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? नसल कैविटी। क्या बोलेंगे? हर एक नोस्ट्रिल के अंदर एक नसल कैविटी होती है। क्लियर किड्स? नसल कैविटी हर एक नोस्ट्रिल के अंदर होती है। Cells in the nasal cavity are sensitive to smell. जो nasal cavity के cells होते हैं ना, वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं?
सेंसिटिव टू स्मेल, स्मेल करने में वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। कौन से पार्ट? तो कि दोनों नॉस्ट्रिल के अंदर जो नसल कैविटी होती है वो स्मेल करने में बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। These cells are connected to the nerves that send messages to the brain to identify different smells. नोज स्मेल तो कर रहा है बट उसको ब्रेन तक मैसेज भी पहुंचाना है, ये किसकी स्मेल है, ये क्या है, ये सब कुछ कि कौन करता है? बिकॉज जो नसल कैविटी होती है ना वो नर्व्स के साथ कनेक्टेड होती है, ब्रेन की नर्व्स होती है ना उसके साथ कनेक्टेड होती है, तो वो इजीली ब्रेन को मैसेज सेंड कर देता है, ये रोज़ की स्मेल है, ये चंपा की स्मेल है, ये इस हेयर ऑयल की स्मेल है, ये शैम्पू की स्मेल है, ये एप्पल की स्मेल है। राइट किड्स? तो इसका क्या काम है? वो किसके साथ कनेक्टेड रहते हैं? ब्रेन के साथ, जिसको सेंड मैसेज को सेंड करता है। राइट? तो हम इजीली कोई भी स्मेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? Now kids, here we completed all the things about nose also. Now ears. Ears helps to hear. Sorry, ears help to hear. हमारे ears का क्या काम है? हमें hear देना, मतलब सुनना। हम ear से सुनते हैं साउंड को। राइट? डॉग बार्क करता है तो हमें पता चलता है, कैट म्याऊज करती है तब हमें पता चलता है, फिर मम्मी हमें बुलाती है तो हमें पता चलता है, दीदी की आवाज़ भी आपको सुन के पता चलेगा कि ये इस दीदी की वॉइस है, ये इस दीदी की वॉइस है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम किसकी हेल्प से करते हैं? ईयर्स की। राइट? द ईयर हैज़ 3 मेन पार्ट्स। ईयर के पास कितने मेन पार्ट्स है? 3 मेन पार्ट्स है। आउटर ईयर, इनर ईयर, सॉरी outer ear, middle और inner. outer ear, middle ear and inner ear. ears हमारे 3 पार्ट्स में होते हैं। एक outer ear, फिर बीच वाला होता है उसको हम क्या बोलेंगे? middle ear, और लास्ट वाला होता है उसको हम क्या बोलेंगे? inner ear. Clear kids? If suppose I am going to ask you, the ear has blank main parts, then what you are going to fill? The ear has 3 main parts, right? Which are they? Outer ear, middle ear and kids, inner ear. Right? Now structure of the ear. Number 1. Point number 1. Kids, before I explaining structure of the ear, here I am sharing an image of the structure of the ear. उसको आप concentration के साथ देखोगे। देखो बाहर का आपको दिख रहा है, उसे हमने बोला ना 3 पार्ट्स होते हैं। आउटर ईयर दिखा है ना, हमारा आउटर ईयर तो हमें भी विजिबल होता है। राइट? फिर बीच वाला है वो है मिडल ईयर। क्या है? मिडल ईयर। और लास्ट वाला है उसको हमने क्या बोला? इनर ईयर। आपको तीनों के तीनों पार्ट विजिबल है ना? अब कंसंट्रेशन के साथ 1 मिनट तक आप देखोगे। आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। राइट? नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर, पॉइंट नंबर 1. द विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड द आउटर ईयर। जो हमें बाहर की तरफ विजिबल दिख रहा है उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? outer ear. The outer ear receives sound. outer ear sound को receive करता है, मतलब sound को उसको receive करता है। Clear kids? Now point number 2. Sound travels through the outer ear and falls on the eardrum. outer ear से sound travel करके किसके ऊपर पड़ता है? eardrum के अंदर। कहाँ पे जाता है साउंड? आउटर ईयर से साउंड को रिसीव करके वो डायरेक्टली ईयर ड्रम में पहुंचता है। कहाँ पे पहुंचता है? ईयर ड्रम में। आपको दिख रहा है नीचे ईयर ड्रम एरो करके दिख रहा है, वहाँ पे साउंड को पहुंचा दिया। द ईयर ड्रम इज द थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर. It vibrates just as a stretched rubber band does when you realize it.
ईयर ड्रम एक थिन मेम्ब्रेन जैसा होता है जो वाइब्रेट करता है। क्या करता है? जो वाइब्रेट करता है। कैसे वाइब्रेट करता है? जैसे हम हमारे रबर को स्ट्रेच करते हैं, राइट? बिल्कुल उसी तरह से वो हमारी हेल्प करता है। ओके, द वाइब्रेशंस आर देन पास्ड ऑन द मिडल ईयर एंड देन टू द इनर ईयर। फिर वो वाइब्रेशन एकदम से मिडल ईयर में पहुंच जाता है और लास्ट में इनर ईयर तक पहुंच जाता है। क्लियर? तो ये सारी की सारी प्रोसेस होती है कि आउटर ईयर पे साउंड रिसीव करता है, डायरेक्टली ईयर ड्रम पे पहुंचता है, ईयर ड्रम से मिडल ईयर और लास्ट में हमारा इनर ईयर तक पहुंच जाता है। द इनर ईयर ट्रांसफॉर्म the sound into a nerve signal which is sent to the brain via nerves। मतलब जो इनर ईयर्स होता है ना, वो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? ब्रेन की नर्व्स के साथ। तो वो डायरेक्टली ब्रेन को मैसेजेस पहुंचा देते हैं। अभी मैं आपको बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो क्या होगी प्रोसीजर? पहले आउटर ईयर ने आपके मैसेज को रिसीव किया, ईयर ड्रम तक पहुंचाया, फिर मिडल ईयर, फिर इनर ईयर, और इनर ईयर ने नर्व को सिग्नल दे दिया। तो वो कहाँ पे पहुंच गया? डायरेक्टली ब्रेन में पहुंच गया। तो ये आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। क्लियर किड्स? नाउ द टंग। The tongue helps us to sense a variety of taste such as sweet, bitter, sour and salty। टंग का क्या काम है? तो एक तो डिफरेंट टेस्ट करना सब कुछ, राइट? कोई भी चीज़ स्वीट मतलब मीठी, बिटर मतलब कड़वी, सॉर मतलब खट्टी और सॉल्टी मतलब सॉल्टी, खारू। क्लियर किड्स? तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी टंग करती है, राइट? इसको आइडेंटिफाई करना। हम कभी ऐसा क्यों नहीं बोलते कि ये मीठे को कभी ऐसा क्यों नहीं बोलते ये तीखा लग रहा है? क्योंकि टेस्ट टंग को पता है कि क्या स्वीट है, क्या सॉल्टी है, क्या सोर है, क्या बीटर है। ओके, टेस्ट बड्स आर टाइनी स्वेलिंग्स प्रेजेंट ऑन द टंग। हमारे टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट बड्स। इससे हम टेस्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो जो टेस्ट बड्स होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग मतलब सूजा हुआ होता है, थिन होता है, थोड़ा सा थिक होता है, राइट? थिक होता है। दे कंटेन सेल्स दैट आर सेंसिटिव टू टेस्ट। इसके अंदर सेल्स होते हैं, वो टेस्ट के लिए बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? सेंसिटिव होते, इसीलिए तो वो इजीली सारे के सारे टेस्ट कर देते। अगर कोई भी चीज़ हम गरम खा लेते तो टेस्ट बड भी खराब हो जाते, थोड़े दिन वहाँ पे कुछ फील ही नहीं होता है, क्योंकि वो पार्ट बहुत ही सेंसिटिव होता है। These cells send messages to the brain through the sensory nerves। वो जो सेल्स होते हैं ना, वो सेल्स सेंसरी नर्व्स को मैसेज देते हैं। सेंसरी नर्व्स किसको मैसेज देती है? ब्रेन को। तो हमें हमारे ब्रेन को पता चल जाएगा ये सॉल्टी है, ये स्वीट है, ये बीटर है, ये सब कुछ पता चल जाएगा ना। The tongue also helps us to speak and swallow food। हमारी टंग हमें बोलने में भी हेल्प करती है और खाने को स्वेलो करने में, गड़ी जाऊ, राइट? हम खाने को स्वेलो करते हैं ना, उसमें भी टंग हमारी हेल्प करती है। नाउ हियर वी कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स अबाउट द टंग। नाउ लास्ट वन, स्किन। द स्किन फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी। हमारे स्किन का आउटर लेयर है वो किसका है? स्किन का है, राइट? हमारी फुल बॉडी किससे कवर्ड है? स्किन से। The skin helps us to feel touch and other sensations such as hot or cold, smooth or rough, pressure, pain and so on। स्किन का क्या काम? आउच लगा, सेंसेस फील किया, क्या किया? फील हुआ
ये सारी की सारी नर्व्स ने ब्रेन को मैसेज दिया कि यहाँ पे लगा। मैंने यहाँ पे अपने आप को मारा तो यहाँ पे क्यों नहीं फील हुआ, क्योंकि मैंने यही स्किन पे मारा, राइट। तो यहाँ पे यहीं पे फील होगा। कोई भी गर्म चीज़ मैं यहाँ पे टच करूँगी तो इमीडिएटली ब्रेन को पता चल जाएगा, बिकॉज उसको प्रेशर, पेन, ये सारी की सारी चीज़ के सेंसेशंस होते हैं। क्या होते हैं? सेंसेशंस होते हैं। क्लियर? वंस अगेन आई एम रीडिंग ऑल द थिंग्स अबाउट स्किन। द स्किन फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी। द स्किन हेल्प्स अस टू फील टच, कोई भी टच को फील कर सकते हैं, and other sensations such as hot or cold, smooth or rough। हमें पता चल जाए ये स्मूथ वाला सरफेस है, कोई भी रफ वाला सरफेस है तो भी स्किन को पता चल जाता है। और पेन, कोई भी चीज़ का पेन हो रहा है हमें तो वो भी स्किन को पता चल जाता है, राइट। सो दिस इज द वर्क ऑफ स्किन। सो किड्स, here we completed our chapter, the nervous system. In this chapter, what we understand? We understand all the things about the nervous system, the brain, nerves, the spinal cord, reflex actions, and all the things about sense organs: eyes, ears, nose, tongue, and skin. So kids, I'm sharing a PDF with few blanks and few questions. Try to solve it by your own self. It is too easy. अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से सेशन को समझा है तो ये बहुत ही ईजी है आप लोगों के लिए आंसर देना। ओके, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको CW वर्क आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो टिल नेक्स्ट सेशन किड्स, बाय।